కుమార్ రెడ్డి, రిటైర్డ్ జేడీ వెటర్నరీ, పొద్దున్నే నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నా కొద్దిగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడు, నేను అక్టోబర్ 2024లో రిటైర్ అయినా, ఇంతవరకు ₹1 రాలేదు, హైకోర్టుకు పోయి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నా అయినా రాలేదు, హైకోర్టులో కంటెంప్ట్ వేసినా, కంటెంప్ట్ వేస్తే కూడా వాయిదాలు అడుగుతూ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెడతా ఉంది, మా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ బెనిఫిట్లు ఇప్పించండి, చావు బతుకుల్లో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని కాపాడండి, 30-35 ఏళ్లు ప్రభుత్వానికి సేవ చేసినటువంటి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను ఈ రకంగా వేధించడం ప్రభుత్వానికి తగదు, దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోండి అని చెప్పి పొద్దున్నే నా ఇంటికి 7 గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నాడు సార్. నేను బయటకు వచ్చేసరికి ఏంది ఇంత పొద్దున్న వచ్చినావంటే, ఇట్లా ఉందన్న ఆరోగ్యం బాగాలేదని చెప్పమంటే బట్టి గారికి చెప్తా, తప్పకుండా ఈ రోజు నేను మాటిచ్చి వచ్చి ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, సిపిఎస్ ఉద్యోగులను ఓపీఎస్గా మారుస్తామని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది. మరి ఎప్పటిలోగా ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అమలు చేస్తారు? మరి ఈలోపు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి సిపిఎస్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాల్సిన కాంట్రిబ్యూషన్ డబ్బులను కూడా మీరు కట్టకుండా దాన్ని దారి మళ్లిస్తా ఉన్నారు. అసలు కాంట్రిబ్యూషను కట్టలేరు, ఓపీఎస్ తేకపోవడం వల్ల 2 లక్షల మంది సిపిఎస్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఈరోజు ప్రశ్నార్థకంగా మారుస్తా ఉన్నారు. దయచేసి సిపిఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టండి, ఓపీఎస్ విధానాన్ని ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి తక్షణమే అమల్లోకి తేవాలని చెప్పి మీ ద్వారా కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అధ్యక్ష, సరెండర్ లీవులు 5 సరెండర్ లీవులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. టీఏలు రావట్లేదు, డిఏలు రావట్లేదు, స్టేషన్ అలవెన్స్ రావట్లేదు. మొన్న ఒక జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ ఉంటే యూసఫ్ కూడా బటాలియన్ మాత్రం సరెండర్ లీవులు డిఏలు ఇచ్చిండ్రు. రాష్ట్రంలో 1,00,000 మంది పోలీసులకు సరెండర్ లీవులు డిఏలు రాక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. దయచేసి పోలీసులను కూడా ఆదుకోవాలని, గతంలో నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు సరెండర్ లీవులు డిఏలు ఇచ్చాం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 2 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి కనుక వాటిని విడుదల చేయండి. ఇలా పోలీసులు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనలో ఉన్నారు. పోలీసులకు ఉండే ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ కూడా బంద్ చేసిండ్రు, మీరు ₹1,00,000 పరిమితం చేసిండ్రు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఆరోగ్య భద్రతను పునరుద్ధరించండి, గతంలో మాదిరిగా కార్పొరేట్ వైద్యం పోలీసులకు అందించాలని చెప్పి కోరుతూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో తక్షణమే మేము ఉద్యోగులకు పిఆర్సీ ఇస్తాము, పెండింగ్ డిఏలు ఇస్తాము, బకాయిలు ఇస్తాము, ఓపీఎస్ తెస్తామని మాట ఇచ్చి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 ఏళ్లైనా అమలు చేయకుండా మోసం చేస్తా ఉంది. జరిగిన అన్యాయం ఇప్పటికే చాలా జరిగింది. తక్షణమే ఇప్పటికైనా ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు, పోలీసులకు ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి మేలు చేయండి అని చెప్పి మీ ద్వారా ఆర్థిక మంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సీనియర్ శాసనసభ్యులు హరీష్ రావు గారు ప్రస్తావన చేసిన అంశాలన్నింటిని కూడా నోట్ చేసుకున్నామని, కానీ అవదృష్టికి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు హరీష్ రావు గారు వారి పార్టీకి సంబంధించి ఉద్యోగస్తుల గురించి, వారి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే ఏ విధంగా ఉందంటే దయ్యాలు వేదాలు వలికినట్టుంది అధ్యక్ష. ఉద్యోగస్తులకి ప్రతి నెల వారి జీతభత్యాలకు సంబంధించి 20 తారీఖు వరకు జీతాలు ఇయ్యలేని పరిస్థితుల్లో వారి ప్రభుత్వం నడిపారు. ఇప్పుడు వారి ఉద్యోగస్తుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఏదేమైనప్పటికీ ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన సంక్షేమం, వారికి రావాల్సిన జీపీఎఫ్ కానీ, రిటైర్ అయిన పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఒక సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వారికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది రాకుండా అన్ని విధమైన చర్యలు తీసుకుంటామని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने जीरो ओवर में मुझे मौका दिया। मैं आपके जरिए से हुकूमत के सामने ये बताना चाहता हूं साहब कि नामपल्ली हल्के में मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो रियासत तेलंगाना के सबसे बड़े हॉस्पिटल है। एक है MNJ कैंसर हॉस्पिटल, दूसरा है नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तीसरा है सरोजनी देवी हॉस्पिटल और एक सबसे बेहतर परफॉर्मिंग नामपल्ली वार्ड हॉस्पिटल है साहब, जिसके ऊपर हुकूमत की नजर होना सख्त जरूरी है। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में करीबन 500 से ज्यादा आउट पेशेंट्स हर रोज आते हैं।
और उसका आउट पेशेंट वार्ड तकरीबन पूरा कंजेस्टेड हो चुका है और वहां पे जो गरीब आता है उनके लिए कई दुश्वारियां वहां पे हो रही हैं। और खास तौर से वहां पे जो डॉक्टर्स के पोस्ट है, चाहे वो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल रही है या नीलूफर रही है या सरोजनी और MNJ, कई डॉक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है और जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज्यादा नंबर्स को कैटर करने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तेलंगाना के ज्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है और हमें उन डॉक्टर्स का प्रेशर कम करना है और वहां के गरीबों के साथ ठहरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है साहब कि इंचार्ज मिनिस्टर साहब के साथ, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ एक फौरी एक रिव्यू मीटिंग इन हॉस्पिटल्स के लिए रखी जाए। वहां पर साहब एक ICU भी होना बेइंतहा जरूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या खवातीन वहां पे आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इसमें है सब कि हम वहां पे फौरी तौर पे एक ICU बनाएं। उसी के साथ साथ नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, अफसोस की बात यह है साहब 2 साल पहले इसी 0 ओवर में मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक MRI की सख्त जरूरत है और मुझे यहाँ पे तवक्कुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को MNJ कैंसर हॉस्पिटल में जाकर MRI कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में MRI लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद सब, यहां मेरे नामपल्ली हलके में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार काट में है सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है। तो उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, पर अफसोस की बात है सब हमारे लिए कोई अहदेदार वहां पर आगे बढ़कर उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सर। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं सर ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन 3-4 हॉस्पिटल की बुलाई जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पर रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया साहब। के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज्यादा नंबर्स को कैटर करने की। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तेलंगाना के ज्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है और हमें उन डॉक्टर्स का प्रेशर कम करना है और वहाँ के गरीबों के साथ ठहरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है साहब कि इंचार्ज मिनिस्टर साहब के साथ, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ एक फौरी एक रिव्यू मीटिंग इन हॉस्पिटल्स के लिए रखी जाए। वहां पर साहब एक ICU भी होना बेइंतहा जरूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या खवातीन वहां पे आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इसमें है सब कि हम वहां पे फौरी तौर पे एक ICU बनाएं। उसी के साथ साथ नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, अफसोस की बात यह है साहब 2 साल पहले इसी 0 ओवर में मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक MRI की सख्त जरूरत है और मुझे यहाँ पे तवक्कुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को MNJ कैंसर हॉस्पिटल में जाकर MRI कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में MRI लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद सब, यहां मेरे नामपल्ली हलके में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार काट में है
सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है। तो उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, पर अफसोस की बात है सब हमारे लिए कोई अहदेदार वहां पर आगे बढ़कर उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सर। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं सर ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन तीनों चारों हॉस्पिटल की बुलाई जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पर रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया साहब। के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज्यादा नंबर्स को कैटर करने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स है जो तेलंगाना के ज्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है, और हमें उन डॉक्टर्स का प्रेशर कम करना है और वहाँ के गरीबों के साथ ठहरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है साहब कि इंचार्ज मिनिस्टर साहब के साथ, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ एक फौरी एक रिव्यू मीटिंग इन हॉस्पिटल्स के लिए रखी जाए। वहां पर साहब एक आईसीयू भी होना बेइंतहा जरूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या खवातीन वहां पे आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है, जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इसमें है सब कि हम वहां पे फौरी तौर पे एक आईसीयू बनाएं। उसी के साथ साथ नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, अफसोस की बात यह है साहब 2 साल पहले इसी 0 ओवर में मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक एमआरआई की सख्त जरूरत है और मुझे यहाँ पे तवक्कुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में जाकर एमआरआई कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एमआरआई लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद सब, यहां मेरे नामपल्ली हलके में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में है सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है। तो उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, पर अफसोस की बात है सब हमारे लिए कोई अहदेदार वहां पर आगे बढ़कर उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सर। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं सर ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन तीनों चारों हॉस्पिटल की बुलाई जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पर रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया साहब। सर, जनाब माजिद हुसैन साहब जो भी उनकी बातें रखी है मैं नोट किया हूँ और इंशाल्लाह हम सीरियसली इसके ऊपर गौर करेंगे और रिजल्ट भी देंगे।
ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ప్రధానంగా గల్ఫ్ కార్మికులకు సంబంధించిన చర్చ